What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is 22nd of March. Today is a Sunday, and tomorrow on Monday when the market's going to open, most probably we'll be opening sub 23,000 levels, and there is a very high chance that we'll also be giving a daily close below 23,000 levels, which is definitely not a good thing for bulls. On Friday, the markets opened flat, and for the first half, the markets were pretty strong. We even hit 23,400 levels, and the market saw a sharp sell-off in the second half, and we almost ended at 23,100. But when the markets closed on Friday, there was a lot of developments in the ongoing geopolitical tensions, and things are not looking good, and this war has seen a next level of escalation, and because of this, all the global markets reacted negatively. But हमारा जो markets था already closed था, and on Friday, the S&P closed almost 1.5% in red, and as of now, Gift Nifty is showing almost 300 points lower to Friday's close. So most probably, कल markets 23,000 के नीचे खुलने वाला है, and expect a sharp rise in the premiums, expect the volatility to shoot up, and also expect VIX to shoot up about 23-24 levels. Or unless we see some great positive development on Sunday night, which is today, most probably we will be having a red day on Monday. So on Friday, the straddle opened at 470, and throughout the day, the straddle behavior was erratic. It was just chopping throughout the day without giving any meaningful crush, and by the end of the day, we went home with almost 450 straddle close. And if the markets open sub 23,000 levels on Monday, expect some amount of spike in the straddles and also expect a higher level of intraday volatility. So let's get to the terminal and let's see कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड प्लान बना सकते हैं. Right, मैं purposely Friday के दिन वीडियो नहीं बनाया because there would be some amount of development, and अगर हम लोग Friday के basis पे अगर हम लोग ट्रेड प्लान बनाते हैं तो most probably because of this big gap up or a gap down, then हमारा जो ट्रेड प्लान का जो most of the scenarios जो है वो out of the syllabus kind of scenarios हो जाते थे. So that's why like I'm making the video on Sunday. And yesterday Iran actually fired a long range ballistic missile whose range was almost 4,000 kilometers. तो अब तक सारे कंट्रीज के पास एक आइडिया भी नहीं था कि ईरान के पास ऐसे इतने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के कैपेबिलिटी भी है. बट सडनली yesterday Israel was panicking and it said that Iran now can even launch missiles as far as Berlin and Paris. So imagine the kind of escalation this war just had. And at the same time, neither Iran is backing down nor the US is backing down. US is trying to strong arm Iran, and Iran is, being very adamant. So I don't think there is a amicable end to this war anytime soon. So expect some amount of correction in the markets, expect some amount of volatility, and a good part of this year most probably will be spent, in some sort of an anxiety, in some sort of a chaos, in some sort of a geopolitical turmoil. So daily time frame पे obviously like मैं कह रहा था कि like this is a sell on rise market, and 24,500 जब तक उसके ऊपर हम लोगों को एक daily close नहीं मिलता, so whatever the pullbacks that we are going to get, it must be taken as some sort of a either dead cat bounce or some sort of a pullback in what otherwise is a proper downtrend. So हमारे पास एक local minima था somewhere around 23,000 levels. Of course, plus or minus 50 points because intraday में एक weaking बन जाती है. तो 22,950 to be precise is the low, and वो जो low है 2 बार टेस्ट हो चुका था, and हमने फ्राइडे के दिन भी ये चीज़ प्लान किए थे अगर ये लो इंट्राडे में टूटता है तो देन एक्सपेक्ट फर्दर डाउन साइड. बट फॉर्चुनेटली फ्राइडे के दिन मार्केट्स ने एक इनडिसाइसिव काइंड ऑफ अ कैंडल ज़रूर प्रिंट किया, बट यू कैन नोटिस दैट द मार्केट्स क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट द डेज लो के आसपास कैंडल क्लोज दिया है. दैट इज़ अगर कैंडल ऐसे फॉर्म हुआ है तो क्लोज समवेयर अराउंड 25% के नीचे वाले लेवल पे कैंडल क्लोज दिया है, विच इज़ अ बेरिश pattern in itself. But forget about the patterns, forget about the technical details and all that, but based on the news itself, as of now, Gift Nifty is showing 22,845, which is almost 350 points lower than what the markets closed at on Friday close. So 350 points नीचे बोले तो the markets will be ideally opening somewhere around 22,900 levels. I'm being a little optimistic. अगर चीज़ें थोड़ा और ख़राब हो जाते हैं ऑन संडे, देन एक्सपेक्ट इवन फर्दर गैप डाउन. बट आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. मार्केट्स 22,900 से लेके 22,850 के बीच मार्केट्स खुलने वाला है. तो मेरा जो प्लान बनने वाला है कल के ट्रेडिंग को लेके, तो इट विल बी ऑन द अजम्पशन दैट द मार्केट्स विल बी ओपनिंग सब 23,000 लेवल्स. ठीक है, अगर संडे के दिन कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है एंड देन सडनली वी ओपन अ गैप अप और फ्लैट, देन प्रॉबली आई विल बी रॉन्ग. बट
मैंने जानबूझ के फ्राइडे के दिन वीडियो नहीं बनाया सो दैट आई विल बी एज क्लोज टू द मार्केट ओपन एज पॉसिबल. सो लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी व्हाट माइट बी द प्लान ऑफ एक्शन. तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैडल. तो फ्राइडे के दिन मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि कोई आपको वॉल क्रश नहीं मिलने वाला है, तो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स डेफिनेटली मत करो. एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट 23,400 के आसपास एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे, बट मार्केट्स 23,400 एग्जैक्ट लेवल पे आया नहीं. 23,380 के आसपास मार्केट्स ने यू टर्न मारा. तो इफ यू एक्चुअली ट्रेडेड दैट you would have made money, but I was waiting for 23,400 levels, but वो आया नहीं है. But if you notice throughout the day the straddles actually chopped like 450 से almost 520 तक, again back to 450, again back to 520, and throughout the day there was just chopping all throughout the day. And if you notice, this pattern is exactly inverse of what the price action was. When the straddle was rising, the markets were falling, and when the straddles were dropping, the markets were stable. So it was just based on like how the markets are pricing in the weekend volatility. So by the end of the day we closed at somewhere around 470 के आसपास straddle close हुआ है. तो अगर market 23,000 के नीचे खुलता है तो there is no reason for the straddles to open below 400. straddle 400 के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए. And because it is 1DT on Nifty, तो definitely markets 350 के ऊपर क्लोज भी नहीं देना चाहिए ऑन 1DT. तो एक्सपेक्टिंग ऑल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 420 से लेके 400 के बीच में स्ट्रैडल खुलना चाहिए ऑप्टिमिस्टिकली. अगर मार्केट और नीचे थोड़ा खुलता है और 100-150 पॉइंट और नीचे खुलता है, दैट इज 22,800 के नीचे खुलता है, देन एक्सपेक्ट द स्ट्रैडल टू होल्ड एट 450 लेवल्स. एंड अगर मार्केट में ओवरनाइट क्रश देखने को मिला, अगर 400 के नीचे अगर खुल जाता है, तो देन डेफिनेटली डोंट ट्राई शॉर्ट वॉल ट्रेडिंग और डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग, बिकॉज दिस इज वॉट वी आर सीइंग कि ओवरनाइट में एक ज़रूर क्रश मिल जाएगा एंड थ्रू आउट द डे इंट्राडे में मार्केट्स कंटिन्यूसली वॉल्स में चॉपिंग देखने को मिलेगा. सो अगर प्राइस एक्शन बेस की अगर ट्रेड्स की बात करें तो लेट मी गो टू द लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में, एंड यू कैन नोटिस दैट आई एम अज्यूमिंग दैट द मार्केट्स विल बी ओपनिंग वॉट गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग राइट नाउ. ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ दिस लाइन विच इज 22,950 levels, 22,930 से लेके 22,950 levels, around this and this will be like some sort of a band here. And so this will be a very important point, and this will be a very important inflection point. So इसके आसपास मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेगा उसके बेसिस पे हमारा ट्रेड्स होने वाला है. तो फर्स्ट थिंग इज let's expect that the markets will be opening somewhere around 250 to 300 points down, which gives the open as somewhere around 23,850 levels. तो अगर मार्केट 23,000 लेवल पे आएगा तो then you can initiate a short trade by after observing this kind of a price action. Basically shorter time frame पे एक डबल पैटर्न, डबल टॉप और एम पैटर्न को देख के हम लोग यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. नाउ अगर एक बड़ा गैप डाउन, लाइक मान लो कि इससे भी ज्यादा गैप डाउन, लेट्स से 22,800 के नीचे खुलता है, 22,750 के आसपास खुलता है, तो देन वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल एंड ट्रेड बोथ द ब्रेकआउट एंड द ब्रेकडाउन. दोनों तरफ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये थोड़ा छोटा कैंडल है तो आपका स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा एंड मार्केट्स के पास एक पुल बैक देने के लिए स्पेस भी बचेगा. दैट इज 23,000 तक भी एक पॉसिबल पुल बैक आ सकता है, बिकॉज पीपल हु हैव गॉन शॉर्ट दे विल बी आइडियली बुकिंग द प्रॉफिट्स. तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का बोथ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दोनों चीजें कर सकता है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाई द मार्केट्स, गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स पोजिशनली, बट सिर्फ ये जो चीज है इंट्राडे के लिए है एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेड है. इफ द मार्केट ओपन बिलो 22,800, अगर 22,850 के ऊपर अगर खुलता है तो देन डोंट गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स, बट रादर वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू समवेयर अराउंड 23,000 लेवल्स, एंड यहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड जरूर इनिशिएट करना चाहिए. लेट्स से 22,800 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो फर्स्ट 5 मिनट का ORB बेसिकली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो बोलता है, उसको हम सिर्फ 5 मिनट का कैंडल के बेसिस पे ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. बट व्हाट इफ दिस कैंडल इटसेल्फ इज सम 150-200 पॉइंट का कैंडल लाइक वी हैव बीन सीइंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इटसेल्फ इज अ बिग कैंडल हियर. यहाँ पे भी एक बड़ा वाला कैंडल फॉर्म हो जाता है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा वाला कैंडल फॉर्म हो रहा है. तो व्हाट इफ दैट काइंड ऑफ अ कैंडल फॉर्म्स, देन बेसिकली आपको लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए एंड जस्ट वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू द प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, दैट इज 23,000 लेवल्स के लिए मार्केट आने के लिए वेट करो. 23,850 पे मार्केट खुला, 22,850 पे मार्केट खुला, 23,000 पे मार्केट ने एक पुल बैक दिया, यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न फॉर्म किया. यहाँ पे हम लोग इस टॉप का हाई को स्टॉप लॉस रख के हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते हैं. एंड मार्केट्स
22,750 22,800 के आसपास खुला एंड फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है वो 22,800 या 22,850 के आसपास है, तो देन यू हैव अनदर 100 to 150 पॉइंट्स ऑफ प्रोबेबल मार्केट्स पुल बैक एंड यहाँ पे हम लोग बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों चीज़ों को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादातर हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर एक बड़ा कैंडल बन जाता है, लाइक इतना बड़ा कैंडल बन जाता है, मान लो कि मार्केट 22,600 के आसपास खुला एंड देन प्रॉब्ली 200-250 पॉइंट का एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, तो देन instead of waiting for 23,000 levels, you can actually start initiating the trades at 22,900 itself. तो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स होने का चांसेस जो है ज़्यादा हो जाता है। तो in any case, don't try to trade straddles or strangles tomorrow. There will be definitely an hour of markets action where the markets will be consolidating and you will see some sort of a decay. जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक इफ़ यू हैड इनिशिएटेड द शॉर्ट स्ट्रैडल एट 500 लेवल्स देन प्रोबेबली थोड़ा बहुत आपको कुछ डीके मिलने को मिला होगा, बट अगेन दैट इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डेल्टा कॉस्ट भी इनकर किया होगा एंड उसके बाद अगर आपने राइट टाइम पे बुक नहीं किए होंगे तो देन डेल्टा कॉस्ट के साथ साथ वापस स्ट्रैडल भी स्पाइक हुआ रहता है एंड टुमारो ऑल्सो एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ एराटिक बिहेवियर इन द स्ट्रैडल प्रीमियम्स। सो डेफिनेटली जो स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल प्योरली डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करना मेरे लिए तो कंप्लीटली नो है एंड अगर आपको ट्रेड करना है तो देन वेट फॉर द स्ट्रैडल टू हिट 500 अगर किसी भी रीजन से, बिकॉज इधर इफ द मार्केट्स आर गैपिंग डाउन और मार्केट्स गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली और थोड़ा नीचे जा रहा है एंड इन दैट केस अगर मार्केट स्ट्रैडल अगर मान लो कि 500 के आसपास टच हो जाता है इन एनी केस विच द लाइकलीहुड ऑफ विच इज प्रेडी लो, मैं 20% से भी नीचे प्रोबेबिलिटी उसको असर्टेन करता हूँ, अगर किसी हालत में 500 के आसपास स्ट्रैडल आता है देन यू कैन टेक अ चांस विद प्रोबेबली 20% ऑफ योर साइजिंग बाय ट्रेडिंग द स्ट्रैडल एंड डूइंग डेल्टा एडजस्टमेंट। मतलब स्ट्रैडल को रोल करते रहो एंड 500 पे अगर स्ट्रैडल मिलता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ डिसेंट बेट टू एक्चुअली ट्रेड शॉर्ट स्ट्रैडल्स, बट 400 के नीचे आता है तो इवन दो there will be markets going into consolidation, don't try to short the straddles because markets के पास around 200 rupees का expiry day का premium ज़रूरी मिलना चाहिए। अगर 200 नहीं मिलता है तो 160 170 तो मिलना चाहिए एंड अराउंड 150 पॉइंट्स का जो एक ओवरनाइट का जो रिस्क है वो भी प्राइसिंग करना चाहिए। तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई द स्ट्रैडल विल बी क्लोजिंग बिलो 350। तो अगर मार्केट मान लो कि 400 के आसपास अगर स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा है तो देन देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मैक्सिमम 50 पॉइंट्स, बट गिवन द फैक्ट दैट मार्केट्स ने ये जो डबल बॉटम था इसको भी तोड़ के 23,000 के नीचे जो ट्रेड कर रहा है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ on a 1DT the market the straddle closes at 400 and now I get some comments saying that a straddle काम नहीं कर रहा, straddle काम कर रहा है। See, मैं straddle की बात इसलिए करता हूँ because that is a proxy for gauging the IVs। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैसा है उसको गेज करने का तरीका है स्ट्रैडल। व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रैडल 500 है, स्ट्रैडल 400, इट डजंट मीन दैट ओ 500 को मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल करूंगा और किसी स्ट्राइक पे मैं बैठ जाऊंगा, मार्केट्स ऊपर जाने दो नीचे जाने दो, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैडल इज जस्ट अ टूल टू गेज द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट्स एंड नथिंग एल्स। उसको हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उसका मल्टीपल ट्रेड स्ट्रक्चर्स होता है, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है। तो इफ यू आर सेइंग दैट ओ स्ट्रैडल काम नहीं करा, स्ट्रैंगल काम नहीं करा, देन आई थिंक देयर इज a lot of progression that there is for you to make. So start looking at straddle as some sort of a tool and not some sort of a ट्रेड इंडिकेटर। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्रैडल है तो मतलब मैं स्ट्रैडल ट्रेड किया एंड कंटिन्यूसली मैं एडजस्ट करता रहूँगा तो बेसिकली डे एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग, राइट। अगर स्ट्रैडल एक प्राइस के नीचे अगर ट्रेड करता है तो उसके नीचे थोड़ा बहुत और डीके भी मिलता है, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, बिकॉज ये तो एट द मनी का स्ट्रैडल डीके होता रहता है, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स विल आल्सो बी शिफ्टिंग स्ट्राइक्स। मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट्स वापस रिवर्स करेगा, तो इन ऑल दिस यू विल बी एडजस्टिंग द स्ट्रैडल्स, यू विल बी एडजस्टिंग फॉर डेल्टा एंड देन आपके हाथ में डीके के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। मान लो डीके नहीं मिला एंड स्ट्रैडल इनफैक्ट वापस स्पाइक हो गया, देन डेल्टा लॉस के साथ साथ आपके पास आईवी लॉस भी माउंट होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट हैव एनी फर्दर ट्रेड्स फॉर टुमारो। काफ़ी सिंपल रखने को ट्राई करेंगे। तो बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं उसको याद रखो एंड आई विल सी यू अगेन आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.